নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ কোকৰাঝাৰৰ অভয়কুটি ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ফৰিজুল ৰহমানে পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফৰিজুল ৰহমান নামৰ এই অভিযুক্তটোৱে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হোৱা এগৰাকী নাবালিকাৰ মোবাইল ফোনটো হালবাৰী এলেকাত লুকুৱাই থোৱা বুলি স্বীকাৰোক্তি প্ৰথমে প্ৰদান কৰিছিল আৰু স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰাত নিখাৰ ভাগত তদন্তকাৰী এটা দলে অভিযুক্ত ফৰিজুলক লগত লৈ হালবাৰী এলেকালৈ গৈছিল অভিযুক্তক লৈ আৰক্ষীৰ দলটোৱে বেদলাংমাৰী এলেকাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অভিযুক্ত ফৰিজুলে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলটোক মোবাইল ফোন দেখুৱাৰ স্থলেৰে ঘন জংঘলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ইয়াৰ পিছতে হেণ্ডকাফ ধৰি থকা আৰক্ষী কনিষ্টেবলজনক আক্ৰমণ কৰি সিনেমাৰ কায়দাৰে ফৰিজুল ৰহমানে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু ব্যৰ্থ হয় আৰু টনা আজুৰাত হেণ্ডকাফে ফৰিজুলৰ হাতত আঘাত কৰিছে পুনৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি ফৰিজুল পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত আৰক্ষীয়ে দুজাই গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ইয়াৰে এজাই গুলী ফৰিজুলৰ ভৰিত আঘাত কৰে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ফৰিজুল নামৰ অভিযুক্তটো আৰক্ষীয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ফৰিজুল ৰহমানক প্ৰথমে কোকৰাঝাৰ RNB চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সম্প্ৰতি বৰপেটাস্থিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অভিযুক্ত ফৰিজুলক আৰু পৰৱৰ্তী খবৰ কোকৰাঝাৰ অভয়কুটি ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়া হৰব চাৰি ৰাভা জাতীয় সংগঠন অভিযুক্তক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে জাতীয় সংগঠনে দুধনৈত আজি নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা সাহিত্য সভা ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতি আৰু নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদে এই ভয়ানক পাশবিক ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধত জড়িত অপৰাধীকেইটাক ফাঁচীৰ জৰিয়তে শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু এই সম্পৰ্কে ৰাভা জাতীয় সংগঠন কেইটাই অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক হুকিয়াকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আনহাতে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত চপাই বালিগাঁৱৰ মাতৃকন্যাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাক লৈও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠন কেইটাই সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত অপৰাধীক 4 মাহে প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰা কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ অভয়পুটি গাঁৱৰ দুগৰাকী কিশোৰী যোৱা 11 তাৰিখে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বলাৎকাৰ কৰি পেলাই গছত ৰছীৰে ওলমাই থৈ যি ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাৰ আমি অতি নিন্দা কৰিছোঁ বৰ্তমান যিসকল দোষী হিচাপে মূল অভিযুক্তসকলক পাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিচাপে তেওঁলোকক ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ দাবী চপাই বালিগাঁৱত ঢেকিয়াজুলিত তাতো যেনেধৰণৰ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল গতিকে সেই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা দোষীক আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই গতিকে এই চেগতে আমি পুনৰ অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ যাতে সেই দুৰ্বৃত্তক যাতে অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে মই অন কেমেৰা ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত আছে ড্ৰাগছৰ মূল ঘাটিটো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰত্যেক দিনে জব্দ কৰা হৈছে নিষিদ্ধ এইবোৰ সামগ্ৰী লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহু সৰবৰাহকাৰী আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পাহাৰ অঞ্চলত স্থানীয় লোক আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ পেডলাৰক জব্দ বিলাসী দুচকীয়া এখন KTM বাহন ধৃত তিনি এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হৈছে বাবলু ৰেকিব আহমেদ আৰু শ্ৰীনাথ মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁও লখৰা অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলে বুলিও মন্তব্য কৰিছে ধৃত যুৱককেইজনে আজি আমি খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে বহুদিনৰ পৰাই কিছুমান ল'ৰা আহি ইয়াতে ড্ৰাগছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰি থাকে আজি আগতে আমি আহোঁ যদি বিভিন্ন ছাইডৰ পৰা এটা পলোৱাৰ তেওঁলোকৰ ৰাস্তা আছিল তেনেকুৱা ধৰণে আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি স্থানীয় লোকৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ তিনিজন যি মানে ড্ৰাগছৰ লগত আসক্তি থকা যুৱক তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি খবৰ পাই আহি তেওঁলোকক আমি নিজক হেফাজতত লৈছোঁ তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন চিৰিঞ্জ বা এনেকুৱা ড্ৰাগছ ইনজেক্ট কৰা কিছুমান সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হৈছে লগতে এখন বাইকো তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে তেওঁলোক পেডলাৰ হয় আৰু তেওঁলোক নিজে সেৱনো কৰে যিটো পাহাৰৰ টিলাৰ ওপৰত হয় বিভিন্ন ধৰণে ৰাস্তা তেওঁলোকে পলোৱাৰ মানে সুবিধা তেওঁলোকৰ আছে ইয়াৰ আগতো আমি কেইবাবাৰো আমি অভিযান চলাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে পাহাৰৰ যি হেৰি আছিল বিভিন্ন ধৰণে যদি ৰাস্তা আছে পলাই যোৱা সেই মতেদি তেওঁলোকে পলাই গুচি গৈছিল কিন্তু আজি স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আজি
বৰ্তমানে ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁৱত আৰক্ষীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ ভাবি চাওক এফালে আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ এইবোৰ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলাই গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে নগাঁৱৰ এই ঘটনা আৰক্ষীৰ পৰাই জব্দ কৰা হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ নিশা কৰ্তব্যৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পথত আৰক্ষীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ব্ৰাউন চুগাৰখিনি নগাঁৱত আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ কেমেৰা কৰ্মৰত জোৱান এজন ইছৰাফুল হুছেইন আৰু ইছৰাফিল হুছেইনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে মেৰতলা ড্ৰাগ সেৱন কৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইছৰাফিল আৰক্ষী বাহিনীয়ে ড্ৰাগ সহ ইছৰাফিলক গতাই দিছে আৰক্ষী আপোনাক ৰখিব দিছিল আপুনি ৰখা নাই হেতু কক আপোনাক ৰখিব দিছিল না হেতু আপুনি ৰখা নাই কিয় ৰখিব দিয়া তে আপোনাক কুপ কেনেকে দিছে আন্তাজক কুপ নিদিয়ে নহয় বাদি মাৰি পেলাই নাই নাই বাহাদি তেনেকে নামাইতো আপোনাক ৰখাব দিছে আপোনাক চলচলি ৰখাইছে আপুনি ৰখা নাই আমতলা ৰখাইছে আপুনি ৰখা নাই তাৰপিছত কুপ মাৰিছে ইয়াত আহি আপুনি দম দিছে আচ্ছা আপুনি পুলিচক কি দায়িত্বত আছে আই কাৰ্ডটো উলিয়াওকচোন আই কাৰ্ডটো উলিয়াই দিয়ক আই কাৰ্ডটো মোৰ লগত নাই আই কাৰ্ডৰ লগত নাই আপুনি কেনেকে ঘূৰি আছে ৰাতি এপেন লকডাউনৰ টাইমত আপুনি মাল লৈ ঘূৰি আছে মাল লৈ নে আপোনাক টাউনত বৰ্তমান আমি আপোনাক টাউনত পুলিচে ধৰা নাই আপোনাক টাউনত পুলিচে ধৰা নাই হা টাউনত পুলিচে ধৰা নাই আমি ৰহাত মাল ধৰি আহিছো ৰহাত আপোনাৰ আই কাৰ্ড ক'ত ৰহাত মাল ধৰে আপুনি ঘৰত কিয় গুচি গৈছে কাৰ ছত্ৰছায়াত কৰি আছে নাই নাই কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে আপুনি কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে সেইটো কওক আপুনি কাৰ ছত্ৰছায়াত ঘূৰি আছে কোনে দিছে আপোনাক ইমানখিনি সাহস হা ইমানখিনি সাহস কোনে দিছে আমি মাল ধৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্টি আছো এনএসি আপোনাৰ নামটো কি নাম কি আপোনাৰ মোৰ নাম ইছৰাফুল হুছেইন ঘৰ ক'ত ইছৰাফুল হুছেইন ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ঘৰ জুৰিয়া জুৰিয়া হয় মাল কেইটা ক'ৰ পৰা নিছে এইটো আমি ৰহাৰ পৰা নিছো ৰহাৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ নিছে মাল ধৰিছো ধৰি পেলাই আপুনি ইয়াত লৈ অহাৰ কোনো হেৰি নাই নহয় নিয়ম নাই নহয় ধৰি আপুনি থানাত দিব লাগিব যদি আপুনি পুলিচৰ মানুহ ধৰি আপুনি থানাত দিব লাগিব কোৰ্টত দিব লাগিব আপুনি ইয়াত কেনেকৈ লৈ আহিলে কোৰ্টত দিয়া আছে থানাত এই মালখিনি যে আনিছে আপুনি থানাত দিয়া নাই কিয় থানাত দিয়া আছে এইটো মাল আমি চলচলিত এটা ল'ৰা পৰা নাই নাই আপুনি এতিয়া কৈছে ৰহা পানিছে এতিয়া কৈছে চলচলি পানিছে এইটো মাল ৰহাতো আছে চলচলি পৰা ধৰি আছে নাই নাই আপুনি এতিয়া কৈছে ৰহা পানিছে এতিয়া কৈছে চলচলি পানিছে মানে কথাটো কি আপুনি কওকচোন আৰু এয়া কথোপকথন শুনিছে আৰক্ষী বিষয়া জোৱানগৰাকীয়ে একো ধৰণৰ কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই ৰহাত 30টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ 2 ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰা হৈছে ৰহা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই 2 ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে আসিকুৰ ৰহমান আৰু আনোৱাৰ হুছেইনক বুধবাৰে বিয়লি আৰক্ষীয়ে দুয়োটাৰে পৰা এখন অল্টো গাড়ী জব্দ কৰিছে আৰু যুৱক দুজনে ড্ৰাগছখিনি নিজে ব্যৱহাৰৰ বাবে আনিছিল নে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল সেয়া বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আটক কৰি জেৰাও অব্যাহত ৰাখিছে কলেজত তিনিআলিতে নাকা চেকিং কৰি এল্টো গাড়ী এখন আৰু দুজন আছামী তেওঁলোকক ড্ৰাগছ খোৱা ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰায় 8 গ্ৰাম হিৰইন জব্দ কৰা হয় সাক্ষী সাক্ষাতত গাড়ীখন জব্দ কৰা হয় কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হয় শালমৰাত লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৱৰ্তী কিমিন বিলগড়ত উপস্থিত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বিলগড়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 7টাকৈ পথ সীমান্ত পথ প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কিমিনৰ পৰা পুটিন সংযোগী পথটো নিজ হাতে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে অন্যান্য আৰু 6টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ অনলাইন যোগে তেওঁ উদ্বোধন কৰিব लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं यह भारत की हमारी एक ताकत है लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है सीमाएं सड़कें जो ये बनी है मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा उनका मनोबल बढ़ेगा और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं राशन है दवा है अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है
इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है, यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की गई। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी की दृष्टि से, सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम अच्छी तरह करते हैं। मैं समझता हूं ये प्रोजेक्ट्स जिनका कि आज जो कारण हो रहा है वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से ये सीमाई जो हमारे क्षेत्र है उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने काम की प्रशंसा की है तो मैं बताना चाहता हूं 2013-2014 जहां तक मेरी जानकारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट केवल 3,000 करोड़ रुपया हुआ था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट वह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, नहीं कम समय। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा न करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज बजट एलोकेशन वह न करती। और 2014 से लेकर 2020 तक 2014 से लेकर 2020 तक 4,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसीलिए मैं बार बार इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं सराहना कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब जब सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो आप जानते हैं बहुत पहले यहां तरह तरह की समस्याएं थी, इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर प्राय लोग त्रस्त रहे थे। लेकिन अब काफी हद तक उस पर भी हमारी सरकार ने काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे, और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होगा। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी सारी इस बात की नहीं होगी, यहां के किसानों ने विगत कुछ वर्षों में जो करिश्मेटिक काम किया है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। एक फसल है जिसको अंतरी फल यहां पर बोलते हैं, अंतरी फल। क्यों प्रेमा जी? अंतरी फल बोलते हैं। कीवी जिसे कहते हैं, कीवी कहते हैं। अब कीवी तो पहले इतनी पैदा होती थी कि लोग उसको लेने वाला कोई नहीं रहता था, लोगों को ऐसे फेंक देना पड़ता था, उसको जानवर तक खा जाते थे। लेकिन आज कुछ महानगरों में तो कीवी 100 रुपये में 2 मिलती है, 3 मिलती है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे किसानों की आमदनी इधर बढ़ेगी। अब उसको कहने के लिए, अब उसको कहते हैं कि कीवी जो नाम रखा है भारत के लोगों ने, वह एलिट नाम है, एलिट नाम।
लोग अब उसको अंतरिक्ष और बाहर के लोग नहीं कहते, लेकिन शायद अरुणाचल के लोग उसे अंतरिक्ष ही कहते हैं। अब हमारी सरकार के द्वारा भी इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन हो और ऑप्टिकल फाइबर हो, माने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष बल रहता है। और उन्होंने तो हमारे सारे केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश कर रखा है कि आप 6 भारत के भागों में जाओ, लेकिन हमारा मंत्री 3 महीने 4 महीने में हर मंत्री एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए और जो भी वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्यों से समीक्षा करनी चाहिए। और हमारे मंत्रियों ने इस काम को किया है। अब एक उल्लेखनीय काम असम के मुख्यमंत्री ने जो इधर किया, जो मुझे जानकारी है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी। इन्होंने असम के लिए भी व्यवस्था की और शायद पड़ोसी राज्यों के लिए भी, अरुणाचल और अन्य राज्यों के लिए भी मुहैया कराई है। मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के लिए है, असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से एक हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहा है या तो हो गया होगा, लगभग 300 बेड का। यानी मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जब मैं यहां पर मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो अब 2 दिन पहले ही गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ्स तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चटपट किया। यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही, और आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद हैं। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए। अब हम लोगों ने तय किया वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे आज तीनों मित्र, मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और हमारे अनुज और केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यह कार्यक्रम यहां पर साथ मौजूद हैं। मुझे निश्चित रूप से इसकी अनुकूल संवेदना हो रही है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आज 12 प्रोजेक्ट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज इसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं। और नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसकी तहे दिल भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। সেয়া আছিল ৰাজনাথ সিঙৰ ভাষণ।
ইতিমধ্যে বিলগড়ত কিমিন বিলগড়ত তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে কি ধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে এই মুহূৰ্তত দেশে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এটা প্ৰয়াস চলাই গৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কথাখিনি কৈছে আৰু লগতে এই যি 7টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ তেওঁ উদ্বোধন কৰিছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথকেইটা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বহু ক্ষেত্ৰতে সেই পথকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন BROই তৈয়াৰ কৰিছে এই পথকেইটা ইতিমধ্যে অৰুণাচলত আন্তঃগাঁথনি যথেষ্টখিনি উন্নত কৰি তোলা হৈছে যি প্ৰতিৰক্ষা বা দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আজি ইতিমধ্যে তেওঁ সেই পথ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ লৈছে ভাষণ আগবঢ়াইছে DG Border Roads, Chief Secretary अरुणाचल, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और अन्य ITBP के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और दूर से दिल्ली से हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर जी और सब जुड़े हुए हैं। मुझे आज शब्दों से कुछ कहने का इच्छा नहीं है क्योंकि मुझे आनंद का जो भाव आ रहे हैं बरसों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे राजनीतिक लड़ाई कि सड़कों का निर्माण बॉर्डर एरिया तक पहुंचना चाहिए क्वालिटी रोड होना चाहिए। हमने बचपन ऐसे समय हमने गुजारे हैं 2 दिन 3 दिन पैदल चल के रोड के अभाव में अपना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में ही मशक्कत करना पड़ता था। जो बॉर्डर रोड्स में हमारे डिफेंस के पर्सनल रहते हैं बॉर्डर गार्ड्स जितने भी फोर्सेस हैं और बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता था। आज रक्षा मंत्री जी यहां आकर के जो बातें हमको बताई हैं उससे आपको पूरा पता लग गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट के लिए बॉर्डर एरिया के लिए साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कितना प्राथमिकता दे रहा है वो आप सबने देखा है और रक्षा मंत्री जी का और से भी आपने सुना है। तो मैं अपना खुशी इजहार करना चाहता हूं और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन में मानता हूं बचपन से मेरा नाता रहा है बहुत ही क्लोज संबंध है हमारे बॉर्डर रोड्स हम लोग तो टास्क फोर्स के नाम से जानते थे। तो इसके साथ जो संबंध है और अभी हाल ही में जो नए हमारा DG बने हैं राजीव चौधरी जी लेफ्टिनेंट जनरल साहब उनके साथ हम दोनों काफी बॉर्डर एरिया में विजिट किए अरुणाचल प्रदेश के और जो रास्ता को हमने देख के आया आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ वर्क जो हमने देखा है मैं रक्षा मंत्री जी के साथ साथ मेरे ओर से भी जितने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स टीम जवान जो बर्फीले इलाकों में कीचड़ों में बारिशों में जंगलों में काम करते हैं सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। আৰু আমি এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম কিমিন বিলগড়ৰ পৰা